Good evening, friends. Myself, Dr. Amy Singla, Director, Singla Mediclinic, Director, IV Test Tube Baby Center, Senior Consultant, Infertility and IVF Specialist. Today I have come up with a new educational webinar and a new educational patient awareness program on fibroids. Like in our routine practice, whenever a patient comes to our OPD related to fibroids, there are a lot of questions in her mind related to fibroid. Like whenever a patient comes to us for the problem of infertility, or maybe she had conceived, she had already children, but what else we can do it for the fibroids if she is having the fibroids. Today I'm going to throw a light on fibroids, like what are the types of fibroids, what they are causing in your body, what are the symptoms, and what we can best what are the medicines available, what are the surgical methods are available to get rid of these fibroids. First of all, I would like to share some things about the fibroids. Like what are the fibroids, what it is. Basically it is a benign tumor. It is a benign tumor of myometrium. We call it in our language like uterus. Uterus has 3 layers. It has endometrium, it has myometrium, and it has outer surface of the uterus. And normally these fibroids, they develop from the middle layer, that is myometrium. Basically from the smooth muscles of the myometrium, these fibroids will develop. In our general population, if we'll say like around 30 to 40% it is the incidence of fibroids in the age group of 35 to 40 years. And etiology, if I'll go into etiology, 40% would be a genetic etiology. Like if any patient comes to me in the OPD related to her fibroids, then maybe her mother, then maybe her sister, or maybe her sister-in-law. It could be genetic in 40% of some patients. And secondly, it could be hormonal. Like it is basically a hormonal dependent tumor, that is estrogen and progesterone dependent tumor, and there are a lot of growth factors to which this fibroid growth depends. And genetics, it has a different origins. It could be cellular, it could be atypical, and there could be some large fibroids. If I would say hormones, estrogen and progesterone, these are there is presence of increase in the receptors of estrogens and progesterones on the uterine surface. And secondly, there could be some hyperestrogenic state in patients. That could be in patients with the polycystic ovarian disease. Hyperestrogenic means the estrogen level is going to be increased in those women. It could be in obese patients, it could be in the who is having a recent history of any CA endometrium, like association of fibroids along with CA endometrium. And one important message in patients with the early menarche, like in females who had attained their menarche early. Like average age for menarche, if I'll say, it would be around 12 to 14 years. If she had attained her menarche at the age of 8 years, 9 years, or maybe 10 years, then she could be a candidate for fibroid development in her later age. And secondly, anovulatory infertility. Anovulatory infertility, like the girls who जिनको periods नहीं आते हैं, जिनको टाइम पे नहीं आते हैं पीरियड्स. जब उनको टाइम पे पीरियड्स नहीं आएंगे, दे आर गेटिंग देयर पीरियड्स, कभी उनको 1 महीने के बाद आ रहे हैं, कभी उनको 1.5 महीने के बाद आ रहे हैं, कभी उनको 2 महीने के बाद आ रहे हैं. तो मे बी उनका जो साइकिल है, उनके अंदर जो डेवलपमेंट है ओवरी के अंदर, वो नहीं हो पा रही है, उनके जो एग्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं. एंड एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज मोस्ट कॉमन इन पेशेंट्स विद PCOD, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देर इज ऑलवेज अ स्टेट ऑफ हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट, ताकि उनका जो अंदर की जो लेयर है, जो एंडोमेट्रियम है, दैट इज गोइंग टू बी थिकन, एंड दैट इज अ गुड दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस fibroids. And there is always a less incidence of fibroids before puberty and late menopause. Like जब उसकी पीरियड शुरू होने वाले हैं उससे जस्ट पहले, और जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं, like after menopause, तो देयर इंसिडेंस would be little less, because
in both these states the hormones of estrogen and progesterone level is decreasing in their body. Classification, if I would say like what are the type of these fibroids. Fibroids there could be present in the uterus also, and that they could be present in the cervix also, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस का नीचे का मुंह, जिसको हम cervix बोलते हैं. तो जो बॉडी ऑफ यूट्रस है उसमें वी हैव दी 3 काइंड ऑफ फाइब्रॉइड्स. जो एक सबसे अंदर की जो लेयर होती है, सबसे अंदर की आई वुड से कि जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स होते हैं, बिल्कुल अंदर होते हैं यूट्रस के अंदर, दैट कुड बी सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स. उसके ऊपर जो आते हैं दैट कुड बी बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड्स. और उसके ऊपर जो होते हैं दैट कुड बी ए सब सीरस फाइब्रॉइड्स, जो यूट्रस के ऊपर जो लेयर है सिर्फ वहाँ पे लटक रहे होते हैं. जस्ट लाइक जैसे आप कहेंगे कि अंगूर का कोई गुच्छा यूट्रस के ऊपर ऐसे लटका हुआ है, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन फॉर दी सब सीरस फाइब्रॉइड्स की इस लेडी को हो सकती है. इसके अलावा कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं जो साथ में यूट्रस के साथ के जो लिगामेंट्स जा रहे हैं, ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड्स बोलते हैं हम उनको. देयर कुड बी सम फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट इन दी ब्रॉड लिगामेंट ऑल्सो, एंड देयर कुड बी सम फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट इन दी सर्विक्स ऑल्सो. लाइक यूट्रस, जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस के नीचे का जो मुंह है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, तो देयर कुड बी सम फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट इन दी सर्विक्स ऑल्सो. बट लाइक हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट कि इसको कौन सा फाइब्रॉइड है और कौन सा फाइब्रॉइड क्या करता है आगे जा कर के, व्हाट आर द इंसिडेंट्स एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस. आई टेल वन बाय वन. जैसे सब म्यूकस फाइब्रॉइड किसी लेडी को आता है तो डिपेंड करता है कि जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, फर्स्ट जो हमारा पेशेंट को क्वेश्चन रहता है कि वेदर शी इज़ इनफर्टाइल लेडी और वेदर कि उसके पास बच्चे ऑलरेडी हैं एंड शी हैड जस्ट कम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस सब म्यूकस फाइब्रॉइड. अगर तो सपोजिंग शी इज़ अ इनफर्टाइल लेडी, अभी उसने बेबी प्लान करना है आगे, लेकिन उसकी कंसीविंग नहीं हो पा रही है एंड शी इज़ अ कैंडिडेट फॉर सब म्यूकस फाइब्रॉइड. देन सेकेंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ दैट सब म्यूकस फाइब्रॉइड. अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है और जो हमारी बीच की एंडोमेट्रियम कैविटी है, जहाँ पे आके बच्चे ने लगना होता है, जहाँ पे आके बच्चे ने ठहरना होता है, तो अगर सपोजिंग वो उस कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है फाइब्रॉइड, देन देयर इज़ एन इंडिकेशन फॉर द रिमूवल ऑफ दीज सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स. और ज़्यादातर केसेस में ये वाले जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स हैं हम हिस्टेरोस्कोपी से ही निकालते हैं. And hysteroscopic myomectomy nowadays it is an upcoming procedure. I think most of the gynecologists they are doing with this technique only, submucous fibroid removal of submucous fibroids by hysteroscope myomectomy, that we call it as hysteroscope myomectomy. hysteroscope एक तरह से जैसे लैप्रोस्कोप होता है, तो hysteroscope is again इंस्ट्रूमेंट जो हम नीचे से इंट्रोड्यूस करते हैं और नीचे से ही फाइब्रॉइड हम यूट्रस के अंदर स्कूप करके उसको हम बाहर निकाल लेते हैं. इसके अलावा सेकंड जो आते हैं हमारे पास इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड्स, दैट अगेन डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़ कि उनका साइज़ जो है वो कितना आ रहा है. अगर उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है देन शी मस्ट बी अ कैंडिडेट फॉर मायोमेक्टमी. अगर उनका साइज़ कम है तो शी कैन प्लान फॉर हर प्रेगनेंसी ऑल्सो. अगर उसके अलावा जो ऊपर के सब सीरस फाइब्रॉइड्स होते हैं वो नॉर्मली कभी पेशेंट्स को कुछ नहीं कहते हैं अनलेस कि उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है एंड दैट साइज़ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, और आपका जो एब्डोमेन है उसको वो कैविटी को वो पूरा डिस्टॉर्ट कर रहा है. आपका जो एब्डोमेन का शेप है इट इज़ बेसिकली डिसऑर्गेनाइजिंग ऑल द शेप ऑफ द एब्डोमेन ऑल्सो. तो बेसिकली whenever a patient comes with any history of fibroid in her any previous ultrasound, तो first of all we have to ask her some symptoms of fibroids, like what she is feeling, कि उसको क्या लग रहा है कि why these fibroids are causing some problem to her. Most of the ladies में I would say in 50% of the females जो ये fibroids होते हैं ये asymptomatic रहते हैं. और ज़्यादातर क्या होता है कि इनका जो साइज़ होता है दैट कुड बी लेस देन 5 सेंटीमीटर. और 30% फीमेल्स में दे आर कमिंग अप विद द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. और जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन दी फॉर्म ऑफ व्हाट, लाइक कईयों को बहुत पीरियड्स आ सकते हैं जिसको मेनोरेजिया बोलते हैं. कईयों को पीरियड्स जो हैं वो रुक रुक के आते हैं, जैसे हर 15 दिन के बाद पीरियड्स आ रहे हैं जिसको हम मिटोरेजिया बोलते हैं. कईयों को होता है कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसको हम पॉलीमेनोरिया बोलते हैं. कईयों को क्या होता है कि पीरियड्स के साथ साथ नीचे से कोई गंदा डिस्चार्ज आ रहा है जिसको हम बोलते हैं पुरुलेंट डिस्चार्ज. दैट कुड बी इन प्रेजेंस ऑफ फाइब्रॉइड पॉलिप ऑल्सो, स्पेशली इन पेशेंट्स विद सब म्यूकस फाइब्रॉइड.
तो फर्स्ट वी हैव टू डिक्टेट एंड वी हैव टू क्लासीफाई दिस सिम्टम्स कि जो पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आया है कि व्हाट इज द मेन सिम्टम फॉर दैट लेडी कि व्हाई शी हैज़ कम टू द ओपीडी विद द हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड। उसके अलावा सेकेंड, इफ़ शी इज़ हैविंग कंप्लेनिंग ऑफ पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, मे भी हो सकता है कि उसका जो पेन है दैट कुड बी पीरियड से उसको पहले हो रहा है पेन, कि जब उसके पीरियड्स आ रहे हैं तब उसको स्पास्मोडिक पेन हो रहा है, या फिर वो प्रेगनेंसी है उसको लेकिन उसको पेन हो रहा है। तो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स, आई विल टेल वन बाय वन। अब सबसे पहले अगर पेशेंट आपके पास ओपीडी में आया विद द कंप्लेंट ऑफ फाइब्रॉइड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द मैपिंग ऑफ फाइब्रॉइड्स। उसको हम बोलते हैं मैपिंग, कि जो आप उसके पास जो एक अल्ट्रासाउंड है कि वो अल्ट्रासाउंड में एक फाइब्रॉइड है, मे भी हो सकता है कि कुछ देयर कुड बी सम हिस्ट्री ऑफ हिडन फाइब्रॉइड्स ऑल्सो, एंड दैट हिडन फाइब्रॉइड्स वी हैव टू इवेल्युएट on the basis of MRI also. So usually we recommend MRI to the patient for the mapping of fibroid if she is a candidate for myomectomy. इसके अलावा क्या होता है कि जब कई पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कई पेशेंट्स का बहुत बड़ा होता है जिनका फाइब्रॉइड का साइज, तो दे आर कॉजिंग सम प्रेशर सिम्टम्स ऑल्सो, क्योंकि फाइब्रॉइड अगर हमारे यूट्रस के अंदर इतना बड़ा है तो इट इज़ कॉजिंग प्रेशर, इट इज़ कॉजिंग प्रेशर टू दी ब्लैडर, इट इज़ कॉजिंग प्रेशर टू दी ब्लैडर से साथ यूरेटर जाता है, यूरेटर के साथ किडनीज जाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि कई बार प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोयूरेटर एंड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस इन पेशेंट्स विद वेरी लार्ज फाइब्रॉइड्स। कई पेशेंट्स में क्या होता है कि इफ़ इट इज़ प्रेसिंग दी रेक्टम एंड साथ में इंटेस्टाइनल वॉल को भी प्रेस करता है, तो इन सम पेशेंट दे विल कम अप विद अ कंप्लेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। और कई पेशेंट्स में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं, बट दीज ऑल आर कंप्लेंट्स मेनली इन पेशेंट्स विद मोर देन 10 सेंटीमीटर और मोर देन 11 सेंटीमीटर ऑफ फाइब्रॉइड्स में ज़्यादातर आती है। सिम्टम्स इसके अलावा जो है नॉर्मली जो मैंने आपको पहले ही बताया, सब सीरोजल का कोई सिम्टम बहुत रेयर होती हैं, सम म्यूकस का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, एंड इंट्राम्यूरल का दे मेनली अफेक्ट ऑफ द फर्टिलिटी बिकॉज उनका जो ब्लड फ्लो है टूवर्ड्स द एंडोमेट्रियम दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। अब व्हाट इज़ ए नेचुरल कोर्स, लाइक कई बार क्या होता है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मैम इनका साइज तो नहीं बढ़ेगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, दे ग्रो स्लोली ओवर 9% ओवर 1 ईयर। इनका ग्रो होता है स्पेशली इन पेशेंट जिनकी हिस्ट्री रहती है मिनोरेजिया की, कि जिनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं या जिनको डिस्मेनोरिया की कंप्लेन है या मिटोरेजिया की कंप्लेन है, तो मे बी उनके जो पीरियड्स आ रहे हैं उनका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो लेवल है दैट इज सिक्रीटिंग, तो उसके कारण उनका जो फाइब्रॉइड्स का ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, एंड स्पेशली इट हैज़ अ रैपिड ग्रोथ इन द प्री मेनोपॉजल ग्रुप। जब हमारे पास लेडी 40-45 की क्रॉस कर जाती है एंड वी आर वेटिंग फॉर हर पीरियड्स कि उसके पीरियड्स जो है वो बंद हो जाए और उसका जो फाइब्रॉइड का साइज है वो कम हो जाए, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट there could be a rapid increase in the size of the fibroid, especially in the premenopausal group. Postmenopausal patient में जब कोई फाइब्रॉइड के साथ आता है, अगर उनका छोटा साइज है तो वी आर गोइंग टू लीव इट, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, स्पेशली अगर उनको कोई वो कंप्लेन नहीं कर रहा, एसिम्टोमेटिक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ बावल एंड ब्लैडर रिलेटेड सिम्टम्स, तो वी कैन लीव इट एंड वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच, वी कैन रिपीट हर अल्ट्रासाउंड आफ्टर ईयर और 2 years। बट अगर उसको कंप्लेन है पोस्ट मेनोपॉजल में, उसको पेन हो रहा है नीचे बहुत ज़्यादा या कोई नीचे ब्लीडिंग हो रही है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो देयर कुड बी सम चांसेस फॉर यूट्राइन सार्कोमा, दैट इज़ 1% चांस इन पेशेंट्स विद ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड्स। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इफ़ अ पेशेंट कम्स अप विद फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी, अभी न्यूली वेड कपल, इफ़ शी कम्स with a history of pregnancy but suddenly she know कि मेरे अंदर एक फाइब्रॉइड है जिसका साइज अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो देयर कुड बी सम कॉम्प्लिकेशन इन हर प्रेगनेंसी ऑल्सो दैट वी यूज टू कॉल इट एज रेड डिजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड दैट यूजली कम्स इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ हर प्रेगनेंसी। इन दोज पेशेंट्स वी हैव टू गिव सम we have to like give some messages to that patient कि if she is having any complaint, अगर उनको कोई पेन होता है नीचे या उनको कोई डिस्चार्ज होता है या हल्की सी कोई ब्लीडिंग होती है, तो शी शुड रिपोर्ट टू हर गायनेकोलॉजिस्ट, शी शुड कम टू आर ओपीडी एंड शो इट। मे बी हो सकता है कि जो फाइब्रॉइड है दैट इज अंडर गोइंग डीजनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ रेड डीजनरेशन ऑफ द फाइब्रॉइड्स। तो उन पेशेंट्स में थोड़ा सा शी शुड बी केयरफुल
कि इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा और उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रही है, तो उसमें हमें कुछ उसको कंजर्वेटिव मैनेज करना होता है एंड वी हैव टू गिव सम फ्लूइड्स एंड वी हैव टू गिव सम इंजेक्शंस टू कीप हर काम एंड कूल। इसके अलावा जो मैं कहूँगी सार्कोमेटस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इज़ 1% इंसिडेंस ओनली। अब आता है डायग्नोसिस, लाइक हाउ वी कैन डायग्नोज दिस टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स कि क्या हो सकता है। हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, पेल्विक एग्जामिनेशन, जो हम अंदर से एग्जामिन करके देखते हैं पेशेंट को कि उसको फाइब्रॉइड जो है वो कहाँ तक लैक कर रहा है, कहाँ तक उसका साइज जो है पहुँच रहा है। इसके अलावा फिको क्लासिफिकेशन दैट we are using for the nomenclature of the fibroids, and imaging is the ultrasound plus MRI support is must to diagnose a fibroid. MRI इज़ वेरी गुड टूल, जिसमें हमारा स्पेशली जो मैपिंग ऑफ फाइब्रॉइड्स है वो हमें अच्छे से पता चलता है कि कहाँ पे किस लेयर के अंदर कोई और सीडलिंग फाइब्रॉइड तो नहीं अराइज कर रहा या कुछ कोई और छोटा मोटा कोई और फाइब्रॉइड तो नहीं पड़ा है। इसके अलावा अब आता है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में ये है कि अगर तो उसको सबम्यूकस फाइब्रॉइड है या फाइब्रॉइड पॉलिप है इनसाइड दी यूट्रस एंडोमेट्रिया, देन फर्स्ट एंड शी इज़ प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी and size is more than 3, 4 or 5 centimeter and it is causing obstruction to the endometrial cavity. So first treatment for that lady is the hysteroscopic polypectomy, and hysteroscopic myomectomy would be a better choice for that lady if she is planning for a pregnancy. सेकेंडली, अगर उसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा साइज़ है एंड दैट साइज इज़ नॉट डिस्टॉर्टिंग द एंडोमेट्रियल कैविटी, देन वी कैन वेट एंड वॉच ऑल्सो एंड वी कैन काउंसल हर, शी कैन गो होम एंड प्लान फॉर हर प्रेगनेंसी. इफ शी इज़ नॉट एबल टू बी प्रेग्नेंट विद इन the like 3 to 6 months of diagnosis of fibroid, then she should come again to us and we have to evaluate the size of fibroid, okay, whether it has increased in size or whether it has the same size. Then what other options we have to counsel her. That time we also again we can counsel her for the hysteroscopic polypectomy or hysteroscopic myomectomy. सेकेंडली, अगर इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड है और उसका साइज बहुत बड़ा है, देन मायोमेक्टमी. At our center we are doing the laparoscopic myomectomy, and laparoscopic myomectomy से पहले कुछ चीज़ें होती हैं that we have to take it in consideration. First is the semen analysis is must for all the patients to whom we are getting for laparoscopic myomectomy. And second, it depends upon the size of the fibroid. Again I would like to say कि अगर size उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है then only we are going to take up for laparoscopic myomectomy. And laparoscopic myomectomy के बाद we are getting a very good results, and most of the patient they conceive on their own after 3 to 6 months of the laparoscopic myomectomy. अगर उसको फाइब्रॉइड सब सीरियस फाइब्रॉइड है, लेयर के बिल्कुल ऊपर पड़ा है, देन वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, बट अनलेस कि उसका जो साइज है बहुत बड़ा है एंड इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर सिम्टम्स, देन देयर वुड बी इंडिकेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द लैप्रोस्कोपिक मायोमस. अब आता है इसके बाद एज 40-45 प्लस एंड शी हैड attained her like she is in the age of perimenopause. She is not an infertile lady. She had conceived, she had already children, but she wants to get rid of these fibroids. अब उसमें कुछ इंडिकेशंस आती हैं कि जिन पेशेंट्स को हम टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी जो हम बोलते हैं उसके लिए ले सकते हैं. अब अगर सपोजिंग पेशेंट को जो फाइब्रॉइड्स हैं वो कॉज कर रहे हैं मिनोरेजिया, उसको बहुत पीरियड्स आ रहे हैं, हर 15 डेज़ के बाद उसको पीरियड्स आ रहे हैं, उसके अलावा डिसमेनोरिया की उसको कोई कंप्लेन आ रही है, एंड वी हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट. We have put a Mirena also, we have given OCPs also, we have put her on medroxyprogesterone also, we have done everything for her for hormonal support for 9 months to 1 year. But instead of that she is not able to relieve with her symptoms. Then at last we have taken up for hysterectomy. तो hysterectomy की we have many choices कि whether we have to do a abdominal hysterectomy, whether we have to do a vaginal hysterectomy, or whether we have to do a total lap hysterectomy. At our center we are doing the total lap hysterectomy only. Very to very rare we are going to open her abdomen. टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में उसके जो फ़ायदे हैं कि शी कैन गो टू हर होम ऑन द वेरी नेक्स्ट डे. एंड टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में वी आर व्यूइंग हर abdominal cavity in a camera and the image is very good,
एंड स्पेशली इट इज़ वेरी गुड इन पेशेंट्स विद प्रीवियस 2 cesareans, जिनके पहले 2 cesareans हुए हैं और उनको हमने हिस्टेक्टमी के लिए प्लान किया है। अगर उनके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एडिजन्स हैं या बहुत ज़्यादा अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो लैप्रोस्कोपिक वर्जन इज़ अ मच बेटर चॉइस देन दी abdominal हिस्टेक्टमी. Then I would like to give this message कि whenever a patient in the perimenopausal age wants to have the option of hysterectomy, she should keep on her mind कि उसको एक laparoscopic gynecologist देख के ही अपना जो हिस्टेक्टमी का है वो प्लान करना चाहिए कि इस सेंटर पे कितनी लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमीज हो रही हैं एंड वेदर दिस सेंटर इज एलिजिबल फॉर दैट. बिकॉज इन टूडेज सिनेरियो आई डोंट सजेस्ट कि एनी लेडीज यू शुड गो for the open hysterectomy. Most of the gynecologists are doing by laparoscopic approach. I myself is a laparoscopic gynecologist. Me and my husband, we are running a advanced laparoscopic center. We are doing all these things by laparoscopy route only. Total laparoscopic hysterectomy would be a better choice for that lady than a abdominal hysterectomy. देयर आर लॉट ऑफ myths अबाउट दी हिस्टेक्टमी कि हिस्टेक्टमी मेरी हो जाएगी तो उसके बाद मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगे. उसमें आई वुड लाइक टू गिव वन मैसेज कि अगर सपोजिंग इफ हमने पेशेंट को हिस्टेक्टमी के लिए लिया, वी हैव डन हर फॉर टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी, लेकिन टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के बाद अगर उसकी ओवरीज अंदर बिल्कुल ठीक ठाक है तो वी आर गोइंग टू कीप हर ओवरीज इनसाइड ओनली, ताकि उसका जो बॉडी का हार्मोनल फंक्शन है वो चलता रहे, उसको कोई भी हार्मोनल सपोर्ट की एक्स्ट्रा की ज़रूरत ना पड़े. अनलेस के कोई ओवरी के अंदर बहुत बड़ा कोई सिस्ट हो या बहुत बड़ी कोई टॉर्शन हो गया हो उसके अंदर, देन देयर कुड बी अ कैंडिडेट कि जिसमें हमें ओवरीज निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है. बट इन टूडे सिनेरियो बीइंग अ नाइस लाइक वी शुडंट रिमूव द ऑर्गन ऑफ एनी वुमन without her consent. If her ovaries are normal and they are working normal, we shouldn't remove her ovaries. We have to just remove her uterus and cervix. And उसके बाद उसको कोई hormonal support की भी ज़रूरत नहीं रहती है. At last, I would like to give this message to all my viewers, to all my patients, to all my well-wishers. Like fibroid से घबराए नहीं. We are running a fibroid clinic at Singla Mediclinic every Thursday in between 4 p.m. to 6 p.m. You can come to us by appointment, and if you have any your queries related to fibroids in pregnancy, related to fibroids in infertility, related to fibroids in perimenopausal, in postmenopausal age, you can WhatsApp me 98155 00448 98155 07974. Thank you. Thank you.